Okay, so we had started the topic functions, yes, and we had studied what are functions, then types of functions, advantages of using the functions, how we can create a function. This is the function declaration, and this is the function call, and this is the function definition. Then we had talked about arguments also, that there can be uh, four forms of functions, namely where it is actually, 1 minute. Yes, so there are four forms of functions where a function can be with arguments or without arguments, and can have or cannot have the return value. Yes, so these are the four forms that we had discussed, and we had discussed the examples of all these forms also. Then we had discussed the examples. Yes, okay. So the topic that we will cover today is call by value, call by reference. So first I'll read this, then we can switch to its explanation. Yes. Okay. So call by value, call by reference. So here, while covering this topic, while covering call by value, call by reference, I am talking about the arguments. I'm talking about the arguments, or what we call as the parameter. Yes. Okay. So first, I'll be talking about call by value. So this is both of these are the methods by which the arguments are passed inside the function. Yes. Okay. First is call by value. So what happens in the call by value? Copy of argument is passed to the function. Changes in function do not affect actual argument in main function. So copy of argument is passed to the function. Okay, and changes in function do not affect actual argument in the main function. Okay, what are actual arguments? Actual arguments are those parameters which are present in the function call. These are present in the main function. और साथ में formal parameters क्या होता है? Formal argument, they are present in the function declaration. Then this call by value method is used when function does not need to modify the argument, and it avoids accidental changes. Okay. Okay, so let's create a program once. I am creating a program here. Okay, so I am creating, or I should write, okay, let's see, int swap नाम का मैं function बना रही हूँ, and I am taking two arguments here, int a comma int b. Okay, because this is the function declaration, so I am taking I am writing semicolon. Now I am writing int main. In int main, what I am taking two variables, x, or I can take a comma b, whatever name you want to give to these variables. Let me take x comma y. Okay, so now I am writing here printf, enter the values of x and y. Then after that I am taking scanf, then I am taking %d, and then for scanf we have to write ampersand, so I'm taking ampersand x comma ampersand y. So here I can take input of two variables. Now what is the importance of the function? That you have to call this function inside the main program. Yes, inside the main function. So right now I am taking the swap, and because I have to take the arguments also, so here inside this main I have arguments x and y, so I write here x comma y. तो जो भी मेरे पास में डेटा कुछ ये इम्प्लीमेंट होगा स्वैपिंग का कोड, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन x and y, because I am giving these values, I am passing these values through this function, and
जो data होगा for this function, that will be considered as x and y. So right now I have to write few lines here also, but first I will write the definition of the function. So I can write int swap. Yes, so directly you can take this line. Yes, I'm writing this line, and then you just exclude the semicolon and write the definition of the function. So I have right now a and b, जो ये local हैं, local in the sense they are considered inside this body of the function, means line 14 and 15, right? So these are local, मतलब यहाँ पर either you write here int a b, so this are considered as int a b inside. ठीक है, तो I am now for swapping you need third variable also, so I am writing here a temp variable, I am taking extra variable. तो उसके बाद में what you have to do, how do you swap the variables? First you put इसका a की value को आप temp में रख दीजिए. Yes, so I am assigning the value of a in temp, and now um, a is free, and now you can write a is equal to b, because you are now sending the value from b into a. Yes, and at the end whatever is in temp, that can be now transferred to b. Fine. Okay. So ठीक है. Yes. Okay. So what happens here? Now I am writing, I'm not returning anything. So I can write here void, and I can write here also void. Yes. Okay. So when I call this function, what happens? 1 minute. So I call this function, so this will be executed. After that, I have to print the values of x and y. So I have to see whether the values of x and y have swapped or not. Yes. So for that, I write here printf, and then I write values, swapped values. Yes, swapped values are %d and %d, and then I write x comma y. Yes, and at the end I put semicolon, and in between what I'm writing, before function call, I again printing the values that before swapping values are %d and %d and %d. Yes, and I'm writing x comma y. Yes, so let's see the whole program. What I am writing, I am taking a swap variable that is taking two arguments. These are called formal arguments. ये a and b are formal arguments. ठीक है. Then I have main function, and inside this main function I am taking two variables x and y, जिसका मैं input करवा रही हूँ user से, value को input करवा रही हूँ, and then I am printing its value. जो भी user ने input किया है वो print हो जाएगा. After that I am calling this function swap, जिसमें इन दोनों variables को मैं as argument दे रही हूँ. These are called actual parameters. Yes, and after that अब जो भी ये कॉल होगा तो उसके बाद में ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, this swap function, and after the execution of this function I am writing swapped values are %d and %d, and at the end for this main I am writing return 0. Yes Sahil. Yes Sahil, बोलो साहिल, अपने आप को अनम्यूट तो करो. यस मैम. यस मैम साहिल. वो आपने 11th लाइन में एंड के साथ एंड भी लगा दिया है. हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, मैं भी कर देती हूँ उसको. ठीक, चलो ठीक. ओके, सो आफ्टर दैट ओके, so whenever I call this function, तो क्या है, ये जो जो भी मैं x और y की जगह पर इनपुट करूंगी वो सब यहाँ पर जाना चाहिए, और फिर वो सब स्वैप हो जाना चाहिए. ठीक है, तो now I am saving this program. So now what happens, so I am first I am compiling and then executing this program. Yes, so the value, 1 minute, just wait.
So I write the value of x as 12 and then y as 20. Okay. Oh, so this window has gone. Okay, so once again I am putting the value. I am writing 10 and then I'm taking 20. I'm taking value of x as 10 and y as 20. But अब आप ये देखो कि before swapping it is written values are 10 and 20 और फिर swapped values जो second line इधर ये 11th line swapped values are percent d and percent d वो भी 10 and 20 आ रहा है तो क्या ये गलत है तो आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग ठीक है अब ये मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो जो मैं पूछ रही हूँ मैंने यहाँ पर एक कोड लगाया स्वैप का सो यहाँ पर मैंने स्वैप का फंक्शन मैंने कॉल किया है जिसके अंदर डेफिनेशन क्या है अब जब हम स्वैप की कॉल करते हैं तो डेफिनेशन में जो भी आपके पास में है वो सब एग्जीक्यूट होगा सो वट एवर डेटा इज सेंड थ्रू एक्स एंड वाई जैसे मैंने यहाँ पर 10 एंड 20 को सेंड किया है यस 10 एंड 20 को सेंड किया तो ये 10 एंड 20 एक टेम्प वेरिएबल में लेके नाउ आई हैव टू what I'm taking, I am just swapping the variables. Yes. क्या वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए जब मैं यहाँ पर उसको x and y को दोबारा प्रिंट कर रही हूँ yes सोजस मैम आपने रिटर्न नहीं किया वहां से नो नो देयर इज नो कुछ रिटर्न का नहीं है नो प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है रिटर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इफ यू वांट टू रिटर्न इट कैन बी रिटर्न बट नहीं है तो वॉइड लिख सकते हो रिटर्न कुछ भी नहीं रिटर्न आप दो वैल्यूज नहीं कर सकते आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जब रिटर्न हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं सॉरी रिटर्न के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो डू यू रिमेम्बर दैट एक एक्सप्रेशन हो सकता है एक्सप्रेशन जब सॉल्व होके आएगा दैट विल बी ओनली वन वैल्यू डू यू रिमेम्बर दैट रिटर्न में आप ओनली वन वैल्यू को आपने 0 को रिटर्न कर दिया आपने 3.14 को रिटर्न कर दिया आप कोई एक पर्टिकुलर x को रिटर्न कर दोगे लेकिन x कॉमा y ऐसे तो कभी नहीं होगा ये तो कभी नहीं होता दो वैल्यूज नहीं ऐसे रिटर्न होंगी ठीक है तो देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू अब अगर आप इसमें आते हो तो आप क्या रिटर्न करोगे आप a को रिटर्न करोगे b को रिटर्न करोगे टेम्प को किसको रिटर्न करोगे इट शुड बी ओनली वन वैल्यू तो मैं मुझे कुछ नहीं करना फिर भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो दैट्स वाई जो भी आपने यहाँ स्वैप का यहाँ कोड लिखा है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बट हम देख रहे हैं आउटपुट में कि यहाँ पर तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये स्वैपिंग नहीं हुई है यस however it is going inside this function anyways जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके अंदर तो ये जाएगा ही जाएगा लेकिन ये क्यों नहीं हुआ अब आपको एक सिनेरियो ये पता चला कि ये जब भी मैंने यहाँ किया है यहाँ कुछ वैल्यूज दी हैं ये जाकर यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रिटर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर आप ये सोचो कि रिटर्न के कारण हो गया नो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम वो केस नहीं है ठीक है तो आप यहाँ पर 10 एंड 20 वैल्यू भी दे रहे हो और वो यहाँ पर भी जा रही है लेकिन क्या स्वैपिंग होकर फिर वही x में 10 आया है और y में भी 10 आया है यस ये तो स्वैपिंग नहीं हुई तो ये क्यों नहीं हुई है अब इसको हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ठीक है और अगर हमने ऐसे में ही स्वैपिंग को करना है कि यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट हो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो वो है ना यहाँ पर वो 20 और 10 आ जाए स्वैप्ड वेरिएबल्स आ जाए x की वैल्यू 20 आ जाए y की 10 आ जाए तो भी हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है यस तो इसके लिए अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं यस ये जो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ी है ये जो नॉर्मल हमने एग्जाम्पल पढ़ी है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट है जो कि मेथड है एक कॉलिंग करने का एक फंक्शन के कॉलिंग करने का दैट इज द कॉल बाय वैल्यू ठीक है अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है चलो तो अभी हमने जो ये पढ़ा था आई एम रिपीटिंग अगेन ठीक है अब इसको ध्यान से पढ़ना है कि क्या ये कहना चाह रहा है इट इज सेइंग दैट कॉपी ऑफ आर्गुमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन देखो कॉपी ऑफ आर्गुमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन लेट्स गो टू दिस एग्जांपल copy of argument is passed to the function
कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है ना x एंड y, ठीक है, ये पास होंगे किसको, इसको, बट वो क्या कह रहा है, कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन। कॉपी का मतलब क्या, अगर आपके पास में ये 10 एंड 20 है तो इसकी एक कॉपी 10 एंड 20, इसकी एक कॉपी 10 एंड 20 जो है वो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ गया इसमें 10 20। कॉपी कैसा मतलब, जैसे कि आप जीरोक्स कॉपी की बात करते हो, जीरोक्स कॉपी आपको पता है, जीरोक्स कॉपी आप फोटो सेट करते हो, जीरोक्स कॉपी के बारे में जानते हो ना, एक होती है हमारे में ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, और एक होती है आपकी जीरोक्स कॉपी। यस, जीरोक्स कॉपी कौन सी रही, जो आपने फोटो कॉपी इसकी करा ली, आपके ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चलो फिर कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन, changes in function do not affect actual argument in the main function, changes in function do not affect actual argument in the main function। आपने changes in the function, जो भी आपने यहाँ क्या किया, ए को टेम्प में डाल दिया, बी को इसमें डाल दिया, सब ये हो गया, तो इसमें जो भी आप यहाँ पर जो चेंज कर रहे हो, यहाँ पर वो क्या आएगा, यहाँ पर चेंज चाहे हो जाएगा, बट इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड in the main function, it can be reflected here, yes, I am, please listen to me very carefully, that is why I am speaking very slowly, जो मैं बोल रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, whatever you are implementing inside the function, that can be implemented, but it cannot be reflected in the main function। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉल बाय वैल्यू। आई रिपीट, यहाँ पर कॉपी, फर्स्ट क्या था पॉइंट, कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट विल बी पास्ड टू द फंक्शन। यस, तो ये आपका फंक्शन है, कॉपी ऑफ आर्गुमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन, देन चेंजेस दैट आर डन इन द फंक्शन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन। क्यों, क्यों नहीं है, आपने जो भी कोई पास किया फंक्शन, स्वैप में आपने 10 और 20 को पास कर दिया, ठीक है, ए और बी, यस, तो आपकी ओरिजिनल कॉपी में क्या है, x जो है, x वो क्या है, वो 10 है, और मतलब आपके पास में ओरिजिनल कॉपी में 10 और 20 पड़ा है, यस, आपने एक जीरोक्स कॉपी बनाई, उसमें भी ये 10 और 20 पड़ा है, ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे आपके पास में एक कॉपी है, आपका पेपर है, तो आपने अपने फ्रेंड से कॉपी ली है, ठीक है, आपने एक उससे जीरोक्स कॉपी बना ली, ठीक है, अब आप जो पढ़ते हुए आप अंडरलाइन करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन करते हो उसके ऊपर, है ना, आपने वो जीरोक्स कॉपी के ऊपर किया है, जीरोक्स कॉपी क्या है, ये जिसमें 10 और 20 पड़ा है ना, आपने इसको चेंज कर दिया, आपने 20 को 10 कर दिया, 10 को 20 कर दिया, ये कर दिया, है ना, ये हमने टेम्प वेरिएबल से कर लिया था, ठीक है, चेंजेस मुझे बताओ किस में हुई है, मैं जो चेंज कर रही हूँ, कुछ मैंने एडिटिंग करी है, वो किस में हुई है, बताओ, रेज योर हैंड, बताइए, कोई तो आंसर दो, भी मैं आगे चलूंगी, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके पास में एक ओरिजिनल कॉपी है और एक जीरोक्स कॉपी, मतलब एक फोटोस्टेट कॉपी आपने करवा ली, ठीक है, आप ओरिजिनल कॉपी को कुछ नहीं छेड़ रहे हो, उसका डेटा वैसे एज इट इज पड़ा है, और आप जो एडिटिंग कर रहे हो ना, कुछ रीड करते हुए जो अपनी कॉपी पे कुछ लिखते हो, ये आपने जो भी चेंजेस करी हैं, कुछ काट के लिखा उस पे, वो सब जीरोक्स कॉपी के ऊपर लिखा है, तो अब आप मुझे ये बताओ, जो चेंज है क्या वो आप ओरिजिनल कॉपी में भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, या नहीं होंगी, या जीरोक्स कॉपी के ऊपर ही होंगी, बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस, यस अमन, जीरोक्स के ऊपर ही होंगी, वेरी गुड, ठीक है, तो बाकी लोअर डाउन कर लो अपना जरा हैंड, ठीक है, तो ये जो जीरोक्स कॉपी के ऊपर ही हुई है, तो ओरिजिनल के ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जो एक्स और वाई जो भी आपने दिया, जो भी वैल्यू आपने यूजर से इनपुट करवाई है, इस केस में हमने 10 और 20 लिया था, वो उसकी एक कॉपी यहाँ पर फंक्शन की कॉल, इधर फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगी, यस, जो भी एडिटिंग होगी वो उस कॉपी के ऊपर होगी, यस,
तो ये हो सकता है ये सब चेंज हो जाए, ये 20 और 10 हो जाए, बट उसका असर ये ओरिजिनल 10 और 20 इस ओरिजिनल x और y पे कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ द वैल्यू, उसका ओरिजिनल इस 10 और 20 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जब आप इसको यहाँ पर 11th लाइन में प्रिंट करवाते हो इस x एंड y को, तो फिर वो 10 एंड 20 ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। यस, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, अब इसको चेक करते हैं। तो स्वैप्ड वैल्यूज मैं बोलती हूँ इनसाइड इनसाइड मेन फंक्शन, तो यहाँ मैं \n हर जगह लगा देती हूँ, ठीक है। \n यहाँ पर भी मैंने \n डाल दिया। और हम क्या करते हैं, एक printf इसके अंदर रख लेते हैं, printf फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि हमने बोला है कि यहाँ पर तो जीरोक्स कॉपी के ऊपर सब चेंजेस हो रही हैं, तो मैं इसमें लिख रही हूँ इनसाइड स्वैप फंक्शन, इनसाइड स्वैप फंक्शन वैल्यूज आर %d एंड %d, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर a, क्योंकि यहाँ a और b है, तो यहाँ मैं पहले इसमें लिख देती हूँ, एक और printf ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। उसमें मैं लिख रही हूँ printf इनसाइड स्वैप फंक्शन वैल्यूज, है ना, वैल्यूज आर %d और पहले मैं a कॉमा b लिख देती हूँ, जो भी इसमें वैल्यू आएगी आपको पता चलेगा कि ये 10 और 20 ही आ रही है ना। और यहाँ मैंने सेमीकोलन लगा दिया। बट इनसाइड स्वैप फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर %d और साथ में अब हम फिर से a और b देखते हैं, है ना, a कॉमा b, क्योंकि वो तो अब स्वैप हो जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको मैं अब सेव कर देती हूँ। अब मेरे पास में 4 यहाँ पर printf की स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ हर एक के बाद में मैं \n डाल देती हूँ, so that it is readable to us. Yes, so I am saving this program. So now I am again compiling and again executing this program, ठीक है। तो ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो बहुत सही रहेगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x, ओके, तो इट यहाँ इसको पूछेगा इट, ओके, यहाँ मैंने x की वैल्यू, ओहो, x की वैल्यू मैं देती हूँ 10 और y की वैल्यू मैं देती हूँ 20 एंड नाउ इसको मैंने अब एंटर कर दिया, ठीक है। देखो पहले हम इसको छोड़ के, पहले हम इसको छोड़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हम पहले देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लुक्स फॉर मेन फंक्शन, सो लेट्स गो टू द मेन फंक्शन। इसमें x एंड y को हमने डिक्लेयर किया है। पहला नंबर क्या आएगा, एंटर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो उसके लिए क्या लाइन आई, ये वाली लाइन, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ जो मैं इसमें मूव कर रही हूँ कर्सर जिस पे, एंटर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमने 10 एंड 20 यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद क्या है, printf में बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज है %d x y की वैल्यू, बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज है 10 एंड 20, ठीक है। वो तो अब क्या है, अब यहाँ पर 10th लाइन में क्या हो रहा है, स्वैप फंक्शन को कॉल किया गया। जब स्वैप फंक्शन को कॉल किया गया तो कहाँ जाएगा आपका कंट्रोल, कंट्रोल विल गो टू द फंक्शन की डेफिनेशन। वहां पर क्या लिखा है, इनसाइड स्वैप फंक्शन वैल्यूज आर %d a b को हमने ओरिजिनल वैल्यूज को प्रिंट किया, क्या है वो आएगा यहाँ पर, इनसाइड स्वैप फंक्शन वैल्यूज आर 10 एंड 20, मतलब हम सही बोल रहे थे कि यहाँ पर एक कॉपी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, a में 10 एंड b में 20। अच्छा, अब हमने कुछ ये तामझाम किया, इसका स्वैपिंग का कुछ कोड लगा दिया, और लास्ट में क्या किया printf में, इनसाइड स्वैप फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर %d और मैंने दोबारा a और b को प्रिंट किया, ये नहीं a एंड b को मैंने प्रिंट किया। क्या आएगा, देखो हमने क्या किया, a और b पहले 10 एंड 20 थे, तो ये देखो इनसाइड स्वैप फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर 20 एंड 10, क्या a 20 हो गया और b क्या हो गया, 10 हो गया। यस, इसका मतलब क्या है कि अंदर जो भी यहाँ वेरिएबल्स हैं वो स्वैप हो गए हैं, है ना। तो मतलब
जीरोक्स कॉपी के ऊपर आपने जो भी एडिटिंग करी वो हो गई है, बट इट विल नाउ, यहाँ अब आपका ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल कहाँ जाएगा, अगेन इट विल गो बैक टू द मेन फंक्शन। स्वैप के की डेफिनेशन अब ये खत्म हो गई थी, तो अब क्या है, प्रिंटफ में क्या है, स्वैप्ड वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन आर एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर क्या करते हो, स्वैप्ड वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन आर, वो तो दोबारा से 10 and 20 है। गॉट इट? ठीक है। नाउ व्हाट आई एम दिस वी कैन से, यहाँ पर अब देखो, कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन। यस, कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट से पता चला कि ये 10 and 20 इनसाइड स्वैप फंक्शन 10 and 20 ही रहेगा। सो कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन फंक्शन डू नॉट अफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इन द मेन फंक्शन। यस, चेंजेस इन द फंक्शन, जो आपने ये जो आपने इनसाइड स्वैप फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज कितना था, 20 and 10 हो गया था। These changes do not affect the actual argument. Yes, do not affect the actual argument in the main function. क्यों? क्योंकि main function के अंदर 10 and 20 ही है। Then it is used when function does not need to modify the argument. It avoids accidental changes. कई हमारे पास में प्रोग्रामिंग में ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेफली रखना होता है, तो फिर हम ये कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है, वो चेंज मेन प्रोग्राम में उन आर्ग्यूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट ना हो। यस, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कॉल बाय वैल्यू। तो नॉर्मल हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं ना, हमने पीछे जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो मैं यहाँ पर कोई एक आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। देखो, ये जो हमने जितनी पहले एग्जांपल्स किए हैं सब कॉल बाय वैल्यू की एग्जांपल ही थी। ठीक है, अब जैसे ये हमने पहले करी थी इंट z, अपने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड को, उसमें कुछ वैल्यूज दे दी थी, और ये सब ये आपने ऐड, यहाँ 952 321, यहाँ क्या जाएगी, इसकी कॉपी जाएगी 952 एंड 321। आपने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, तो ये 952 एंड 321 ये दोनों ऐड हो गए, और फिर उसमें रिजल्ट वेरिएबल में डाल दिया। सी नाउ यू आर रिटर्निंग द रिजल्ट, जो भी इसका 1273 जो ऐड करके आया, यू आर नाउ रिटर्निंग दिस रिजल्ट इनटू द मेन प्रोग्राम। यस, ये रिटर्न करके आप उसको z में डाल रहे हो, और फिर आप z में उसको प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर ऑफ कोर्स ये आप कुछ रिटर्न करके यहाँ पर सेव कर रहे हो किसी वेरिएबल में, या प्रिंट करवा रहे हो, तो इसलिए वो यहाँ पर मेन में उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, वो रिटर्न का काम है, वो कॉल बाय वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। ये आप ये नहीं कह सकते कि 952 तो ये ओरिजिनल है और ये उसकी, ऑफ कोर्स जो कॉपी गई है, कॉपी के ऊपर ये सब क्या है, ये डेटा इम्प्लीमेंट हुआ, फिर ये रिजल्ट वेरिएबल को आपने दोबारा मेन में रिटर्न कर दिया। यहाँ पर यू हैव रिटर्न्ड दिस रिजल्ट वेरिएबल, मतलब ये इंटीजर, एक इंट वैल्यू को रिटर्न कर दिया है ना, तो उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, तो आपने उसको तो सेव कर दिया तो z में, तो उसको आप प्रिंट करा रहे हो। यस, ऐसे ही आपने कुछ नेक्स्ट लाइन में ऐड नाम का एक फंक्शन लिया है, जो डायरेक्टली आप इधर प्रिंट करवा रहे हो %d, मतलब सम वैल्यू इंट वैल्यू इज रिटर्न, तो आप उसको प्रिंट करा रहे हो। ये जो हमने एग्जांपल हमने जो अभी स्वैपिंग की करी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। और रिटर्न में मैंने आपको बता दिया था कि रिटर्न जब हम यूज करते हैं, तो उसमें रिटर्न में वन वैल्यू इज रिटर्न, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई आप यहाँ लिख सकते हो, कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन लिख सकते हो, SQRT, एक वैल्यू यहाँ निकल के आती है, ओनली दैट वैल्यू, वन वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड। स्वैपिंग के केस में तो आपको यहाँ 2 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, हमारे पास में जो भी ये स्वैपिंग के फंक्शन में ऐसे एक ओरिजिनल, जो भी आप मेन के अंदर जो देते हो ना, मेन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कॉल बाय वैल्यू का कोई असर नहीं होता है। वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि एक ओरिजिनल कॉपी है, एक जेरोक्स कॉपी है, इसको ऐसे याद रखना है। इसको
पेपर में ऐसे कई कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे एक्सप्लेन मत करने लग जाना कि एक जेरॉक्स कॉपी है, आप जेरॉक्स फोटोस्टेट कराने गए उसके ऊपर ये लिख दिया, नो। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस कि ऐसा एक कॉपी एक फॉर्म होती है, तो व्हेन वी मॉडिफाई दैट कॉपी दैट चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझाने के लिए मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो होता है जब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाएं, कि यहाँ पर भी के वैल्यूज यहाँ चेंज आए। तो हम सिर्फ कॉपीज के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, हमें तो ओरिजिनल डेटा के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेक्स्ट को कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है, इट पासेस द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पास होता है, कॉपी नहीं पास होती, यहाँ ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पास होता है। एंड चेंजेस इन फंक्शन इफेक्ट द ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। कुछ भी आप फंक्शन में चेंज कर रहे हो, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया ऊपर वाले का, कुछ भी आप फंक्शन में चेंज कर रहे हो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स आल्सो, एंड इट इज यूज्ड ओनली विद द ट्रस्टेड फंक्शंस। ठीक है, it is used only with trusted functions where you know that yes the actual arguments will now be changed। ठीक है, अच्छा, तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, बट उसके पहले हम कॉल बाय वैल्यू का हमने ये एग्जांपल पढ़ लिया है। देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में हमने देख लिया है, एक मिनट, 9:40, ठीक है 9:35 पे बंद हुई क्लास, चलो ठीक है। तो in call by value original value is not modified, and in call by value being passed to the function is locally stored by the function parameter in stack memory location। आपका ये जो डेटा है ये स्टैक मेमोरी लोकेशन पर जाकर, जो कॉपी फॉर्म होती है ना वो स्टैक में जाकर स्टोर हो जाती है। If you change the value of function parameter, it is changed only for the current function. It will not get changed for the variable inside the caller function। तो वही सेम चीज। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू की एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ एक ऐड नाम का फंक्शन है, इट इज हैविंग वन आर्ग्यूमेंट int n। so inside main function you are taking int number, you are assigning two value to this number variable, then you are printing the number, the value of number before calling function is n। आएगा इसमें value of number before calling function is 2। so add is being called and 2 is given as argument here, and then जब function call होता है तो control will go to the function definition, और यहाँ जो 2 है उसकी एक कॉपी यहाँ पर आएगी n के पास। यस, तो दिस 2 विल नाउ गेट एडेड टू 10, n में आ गया, n में आप असाइन कर रहे हैं, सो n में अब टोटल क्या आ गया, 2 + 10 is 12। तो यहाँ प्रिंट एफ करते हुए ये 12 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नाउ आपका फंक्शन खत्म हो गया है, कंट्रोल विल अगेन गो बैक टू द मेन फंक्शन। देन आफ्टर दिस फंक्शन, ये तो हो गया, तो अब क्या है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। तो n की वैल्यू, n मतलब यही नंबर, तो ये क्या रहेगा, ये 2 ही आएगा। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट जो, तो ये आपको कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज आस्क मी, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद कॉल बाय रेफरेंस। प्लीज आस्क मी, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कोई कॉल बाय वैल्यू में कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी। कॉल बाय वैल्यू में कोई भी डाउट है तो पूछिए, ओनली देन वी कैन स्टार्ट विद कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर आएगा तो वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस स्टिल कॉल बाय वैल्यू, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, नो क्वेश्चंस मींस you know everything or you don't know anything, so I assume that you know and the call by value method। Okay? So now next topic is call by reference। so it is the second way of passing, it is the second way of passing parameters to the function। और इसमें क्या होगा, address of the argument is copied into the parameter। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द पैरामीटर। अब ये एड्रेस क्या होता है तो वो भी देखते हैं। And the changes made to the parameter affect the arguments. Parameter in the sense you can say the formal parameters, formal parameters में जो भी change करते हैं वो actual argument reflect होगी। Pass a value by reference, argument pointers are passed function just like any other value, so accordingly you need to declare the function parameter as pointer types. तो इसको पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ एड्रेस की बात हो रही है, तो कौन सा क्या एड्रेस होता है। यहाँ हमने कुछ पढ़ा कि पॉइंटर्स की बात हो रही है, तो वो क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट गो टू द पॉइंटर्स के पॉइंटर्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है that is declared in a program and that occupies a memory according to its size. It has address for the location, so it can be referred later by the CPU for manipulation. So this line is most important. I am reading it again and again. It has pointer जो एक होता है variable होता है, it has address for the location. It has address for the location. So it can be referred later by CPU for manipulation. जैसे आपने int x इज इक्वल टू 10 लिख दिया, आप नॉर्मली क्या करते हो, मेन के अंदर क्या लिखते हो, int x इज इक्वल टू 10, है ना। तो ये कहीं पर मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है, अभी तो आप इसको फिर printf ये सब करते हो। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो x है अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का है तो ये 4 बाइट्स लेता है, ये सब हमने पढ़ा है ना कि मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है और मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। यस, तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने ये int x इज इक्वल टू 10 लिया, इसका मतलब ये x कहीं पर जाकर स्टोर हो जाएगा, है ना। उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो नीचे यहाँ फिगर दे रखी है, कैसे कि कोई वैल्यू कहीं पर स्टोर्ड है, ठीक है, ये वैल्यू है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक आइडेंटिफायर से, x से। और कहीं पर जाकर ये जो स्टोर हुआ उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। मेमोरी में ना हमारे पास में बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप रो कॉलम वाइज आप एक टेबल में एक सेल होता है ना, तो आप उसको ये मान सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है इस मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। ये कहीं पर भी जाकर स्टोर हो जाता है। तो जैसे मैंने अब ये देखो, मैंने अगर लिखा int x इज इक्वल टू 10, तो इसको ये कहीं पर भी जाकर स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सो आई हैव दिस हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो आई हैव int main, तो इसके अंदर मैंने लिखा int I इज इक्वल टू 10 या int x इज, जो अभी आपने एग्जांपल देखी थी, int x इज इक्वल टू 10। तो इसमें अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, printf, और मैं लिखती हूँ %d और फिर मैं इस x की वैल्यू को प्रिंट कर देती हूँ। यस, तो रिटर्न 0 मैं एंड में लिख रही हूँ, तो मैं इसको सेव करती हूँ। मैंने इसको ट्राई ab.c, ठीक है। मैं इसको अब एग्जीक्यूट करती हूँ। ये आपको पता है कि इसमें क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, सो 10 आंसर आ जाएगा। अभी हमने क्या सुना है, ये जो x होता है ये कहीं पर जाकर स्टोर होता है और किसी भी एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हम नहीं इसमें डिसाइड कर सकते। जैसे आप कहीं एक घर में रहते हैं, ठीक है, आपका कोई नाम है, आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं, तो आप ये इसको ऐसा सोचिए कि एक जब आप ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं int x इज इक्वल टू 10, तो ये जो वैल्यू कहीं पर जाकर स्टोर होती है वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर होती है। उसका नाम, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर, हमने पढ़ा था ना आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसे आप अपने नाम से आइडेंटिफाई होते हैं, देन वी पुट अ लेबल हियर, मतलब वेरिएबल का नाम, तो हमने इसको x दे दिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि यहाँ किसी मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर होता है, तो वो उसको मैं प्रिंट आपको दिखाने के लिए क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर \n दे रही हूँ सो दैट इट इज डिफरेंशिएटेड। अगर मैं यहाँ पर
%d is address of this x variable. मैं यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पर ये कोट्स बंद। और अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है कि ये कहाँ पर एड्रेस, कौन से एड्रेस पर जाकर प्रिंट होता है, स्टोर हुआ है, तो आप क्या करिए, एम्परसेंड लिखिए और साथ में x लिख दीजिए। ठीक है, यस, मैंने आपको क्या बोला है, नीचे मैं लिख रही हूँ। तो ये जो एम्परसेंड है ना, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एक बार अपने ऑपरेटर्स में पीछे उसमें जाकर देखना, LMS पे अपने पीटी में कि इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है एड्रेस ऑफ एक्स, तो मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ एक्स। यस, आप इसको स्कैनएफ में यूज करते हो ना, वो मैं बताऊंगी अभी कि कैसे, क्यों यूज करते हो। तो या एक बार मैं पहले बता ही देती हूँ इससे पहले। तो जब आप स्कैनएफ में कुछ इनपुट करवा रहे होते हो ना, स्कैनएफ में, तो आप लिखते हो %d, मतलब ये कोई इंटीजर है और ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाए। अगर हम x की वैल्यू कुछ इनपुट करवाते हैं तो, ऊपर के उसमें नहीं मैं बात कर रही। तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर यहाँ x पर जाकर, x वेरिएबल है, इस x के एड्रेस पर जाकर ये वैल्यू क्या है, स्टोर हो जाए, कौन सी जो यूजर इनपुट कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं। और मैंने जब एड्रेस को देखना है तो मैं %x लिख दिया। एम्परसेंड नहीं, इसको हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलेंगे हम आज से इसको। ठीक है, तो अब इसको मैं रन कर रही हूँ। तो अभी आप ये देखो क्या आया है, %d। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट %d क्या है, फोर्थ लाइन का 10 प्रिंट हो गया, वैल्यू है जो। देन नेक्स्ट लाइन में क्या है, %d इज द एड्रेस ऑफ x वेरिएबल। तो ये क्या है, ये कुछ भी अनयूजुअल सा नंबर आ सकता है आपके पास में, इट इज द एड्रेस ऑफ दिस x वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको एड्रेस कहीं प्रिंट कराना है तो %x यूज कर सकते हो। बाकी का हम बाद में करेंगे, इट्स टाइम टू लॉग आउट, बट आई वांट टू टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव। अभी के लिए कॉल, हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉल बाय रेफरेंस हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये पॉइंटर्स का कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया देन आई एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, आई होप कॉल बाय वैल्यू आपको समझ में आ गया है। यस कार्तिक, प्लीज आस्क, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एड्रेस कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू, सो मैम यस, हमें एनी पता रैंडम कैसे, वैल्यू। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब सिग्निफिकेंस क्या होगा, कोई भी रैंडम वो वैल्यू हम दे बाद में, देते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये पॉइंटर्स के ऊपर तो अभी मैंने पूरा छेड़ा ही नहीं है, ओनली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉल बाय रेफरेंस। आई विल टेल यू लेटर। इसको क्वेश्चन को Okay, यू कैन आस्क अगेन, यू नोट इट डाउन, आस्क अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, okay. अभी तो पॉइंटर्स अभी तो मैं शुरू कर रही हूँ, तो अभी तो पूरा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी चलेगा। मे बी वी कैन, आई कैन मोर एक्सप्लेन व्हेन पॉइंटर्स मेनली टॉपिक इज कवर्ड। तो अभी सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा इसका बस ट्रेलर ही दिया जाएगा। ठीक है, Okay. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you. हाँ, एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, then I am ending this meeting. You can go through, I'll upload its recording today only. You can go through the topics. ठीक है।